العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر اور بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم في مقام آخر الحسن والحسین سید الشباب الجنہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا ساحل لنا اشکارنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و صلات کے بعد میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر میں اکٹھا فرما دیا۔ بے شک یہ بڑی بابرکت محفل ہے جس میں اللہ کا ذکر اور اس کے حبیب کا ذکر اور اس کے دوستوں کا ذکر ہو، وہاں پر اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت دی کہ اماں جان مجھے اجازت دیں، میں آج مغرب کی نماز آقا علیہ السلام کے پیچھے پڑھوں گا اور ان سے اپنی اور آپ کی بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ تو والدہ نے اجازت دے دی۔ گھر مسجد النبی سے کافی دور تھا۔ چلتے چلتے جب مسجد النبی شریف میں پہنچے، مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا۔ مغرب کی نماز انہوں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے ادا کی۔ جب نماز پڑھ چکے تو ارادہ کیا، نیت کی کہ اب جس کام سے آیا ہوں اس کام کے لیے حضور علیہ السلام سے عرض کروں، لیکن حضور علیہ السلام کے ہیبت اور جلال کی وجہ سے آپ عرض نہ کر سکے۔ اتنے میں عشاء کا وقت ہو گیا۔ پھر عشاء کی نماز پڑھی، حضور علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر جب حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہو چکے، پھر عرض کرنا چاہی، پھر عرض نہ کر سکے، کیونکہ یہ مقام ایسا تھا کہ صحابہ کرام ڈرتے تھے کہیں ہم سے کوئی بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے۔ جب حضور علیہ السلام گھر کی طرف جانے لگے تو حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کر چل رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے مڑے بغیر پوچھا من ھذا حذیفہ کہ کون ہے، حذیفہ ہو؟ جب قدموں کی چاپ سنی تو آپ نے پوچھا کہ حذیفہ ہو؟ تو حضرت حذیفہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی آپ کا غلام حذیفہ ہوں۔ ابھی مدعا عرض نہیں کیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بولو کیا حاجت ہے، اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ابھی مدعا عرض نہیں کیا، میرے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا ہاں کیا حاجت ہے، اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ اب کیا رہ جاتا تھا، جس کام سے آئے تھے وہ دعا تو میرے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی دے دی۔ خاموش رہے،
پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حذیفہ ابھی ابھی ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے نازل ہوا ہے، یہ ایسا فرشتہ ہے کہ یہ روئے زمین پر پہلے کبھی نہیں اترا۔ سبحان اللہ۔ اس نے آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لی کہ یا باری تعالیٰ مجھے اجازت دے میں تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کراؤں، سبحان اللہ۔ میں تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کراؤں یا سلام بھیجاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت بھی دی، پھر ایک خوشخبری بھی دے کر بھیجا کہ میرے حبیب کو جا کر یہ 2 خوشخبریاں سنا دو۔ اللہ۔ وہ کیا خوشخبری ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو حدیث شریف کے الفاظ ہیں اس کا مفہوم ہے، فرمایا یہ فرشتہ آیا ہوا ہے جو زمین پر پہلے کبھی نہیں آیا، مجھ پر سلام بھی بھیج رہا ہے اور یہ خوشخبری دے رہا ہے حذیفہ کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ کے نواسے سیدنا امام حسین اور امام حسن تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خوشخبری حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سے یہ حدیث راوی ہے، اور حضرت حذیفہ یہ روایت کرتے ہیں الحسن والحسین و سید الشباب الجنہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری عطا فرمائی۔ میرے دوستو، کائنات میں صبر، شجاعت یا استقامت اور حوصلہ جس سے بھی کائنات سیکھے گی، چاہے وہ صبر ہو، بہادری ہو، استقامت کا پہاڑ ہو یا حوصلہ ہو، وہ سیدنا امام حسین کی ذات ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں، آپ میں صبر بھی تھا، آپ میں بہادری بھی تھی، آپ میں حوصلہ بھی تھا، ایسا حوصلہ کبھی کسی میں نہیں دیکھا، اور آپ استقامت کا پہاڑ بھی بنے رہے جتنے بڑے مصائب آئے، اور کائنات اگر سیکھے گی ان خوبیوں کو تو وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام سے سیکھے گی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امام حسین کے ساتھ جو 72 رفقا تھے ان میں 21 اہل بیت کے افراد تھے، اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام نے ساتھ نہیں دیا، 21 اہل بیت کے گھر کے افراد تھے، باقی جو افراد تھے 72 میں سے وہ صحابہ کرام کی اولاد تھی۔ عمر بن سعد نے عبداللہ بن زیاد کو رکا بھیجا، خط بھیجا کہ 22,000 کا لشکر آپ کے مقابلے میں تھا، پھر بھی خط بھیجا کہ اور فوج بھیجو۔ تو عبداللہ بن زیاد نے کہا کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، 72 کے مقابلے میں 22,000 تو بھیج چکا ہوں، اب اس سے زیادہ کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا تم جانتے نہیں ہو یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ اہل بیت کے افراد ہیں، یہ ان کا ایک ایک شخص 1,000 کے مقابلے میں بھاری ہے، 1,000 کے مقابلے میں بھاری ہے۔ پھر دوستو، حضور علیہ السلام نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تربیت فرمائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت امام حسین باپ، 7.5 سال عمر تھی اس وقت، بڑا لاڈ کرتے تھے اپنے نانا جان سے، حضور علیہ السلام بھی بہت زیادہ پیار فرماتے تھے۔ سامنے بیٹھے ہوئے تو اچانک ہی انہوں نے، یہ واحد شخصیت ہی فرماتے ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی نانا جان اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے جب وجہ پوچھی تو سیدنا امام حسین عرض کی نانا جان میں آپ کے برابر ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا، مسکرائے، پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر امام حسین کو ہاتھوں سے پکڑ لیا، ہاتھوں سے پکڑ کر جب اوپر اٹھایا تو پہلے آپ نے اپنے جو پاؤں تھے وہ آپ کے گھٹنے مبارک پر رکھے، جیسے بچے ضد کر جاتے ہیں تو ایسے اٹھایا، تو آپ نے اپنے پاؤں مبارک حضور علیہ السلام کے گھٹنوں پر رکھے، پھر سینے پر رکھے۔ جب قد تھوڑا سا حضور علیہ السلام سے اوپر ہوا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب بس کر دے، تو نے تو کہا تھا میں برابر ہونا چاہتا ہوں، تو مجھ سے بھی اوپر نکل گیا ہے۔ تو اس طرح کا لاڈ اور پیار نانے اور نواسے کے درمیان ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ سیدنا امام حسین، بچپن کی باتیں ہیں،
पूछते हैं नाना जान से, नाना जान अल्लाह ताला के हाँ आपका मकाम ज़्यादा है या मेरा मकाम ज़्यादा है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फिर भी इस बात पर तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराए कि ये कैसा सवाल है, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, नबी हूँ, उसका महबूब भी हूँ, यकीनन मेरा मकाम तुझसे ज़्यादा है, तू मेरा नवासा है। तो सैयदना इमाम हुसैन ने अपने बचपन की मतलब एक बात पे ये फरमाया, अर्ज़ की कि नाना जान मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरा मकाम अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा है। तो आपने जब वजह पूछी तो उन्होंने अर्ज़ की, नाना जान जिस तरह का नाना मेरा है उस तरह का नाना आपका तो नहीं है। यानी कि फिर भी अपने नाना जान की शान को बढ़ाया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम एक दफ़ा नमाज अदा कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो सैयदना इमाम हुसैन खेलते हुए आ गए तो आपके कंधे मुबारक पर सवार हो गए। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ, ए मेरे महबूब सजदा लंबा कर दीजिए। वैसे आमतौर पर सजदे में 3 या 5 या 7 तस्बीह पढ़ी जाती हैं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम उस वक्त तक तस्बीह पढ़ते रहे जब तक हुसैन आपके कंधे मुबारक पर सवार रहे। सुभान अल्लाह। उस वक्त तक तस्बीह पढ़ते रहे। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास हज़रत आपके पैदाइश का जो एक वाक़या है, हज़रत उम्मे फ़ज़ल आपकी चच्ची है, एक दफ़ा सुबह सुबह बड़ी खौफज़दा और रोने के अंदाज में रोनी हुई सूरत बनाते हुए आपके पास आई और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैंने बड़ा ही एक भयानक ख्वाब देखा है, बड़ा खौफनाक ख्वाब देखा है, मैं के पास इसलिए आपके पास सुबह सुबह दौड़ती हुई आई हूँ। फिर आपने फरमाया, अर्ज़ करो क्या ख्वाब देखा है तूने? तो हज़रत उम्मे फ़ज़ल अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह मैंने देखा है कि आपके गोश्त का एक टुकड़ा कट कर मेरी झोली में आ गिरा। अल्लाह। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया, चच्ची ये तो कोई खौफनाक ख्वाब नहीं है, ये तो बड़ा मुबारक ख्वाब है। तो उन्होंने वजह पूछी, अर्ज़ की, हुज़ूर वो कैसे? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चच्ची जान बात ये है कि दरअसल फ़ातिमा को एक बेटा पैदा होगा जो तुम्हारी गोद में खिलेगा, चूँकि वो मेरी नस्ल में से है, मेरा नवासा होगा, इसलिए तुम्हें यह दिखाया गया है कि मेरे गोश्त का टुकड़ा तुम्हारी झोली में आ गिरा। सुभान अल्लाह। इसी तरह जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश हुई तो चूँकि सैयदना इमाम हसन 11 माह के थे और आप मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि सैयदा फ़ातिमा के लिए दोनों बच्चों को संभालना ज़रा मुश्किल होगा, तो उन्होंने सैयदना इमाम हुसैन को अपनी चच्ची उम्मे फ़ज़ल के यहाँ परवरिश के लिए दे दिया। तो इस तरह ये ख्वाब उनका पूरा हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दोनों शहजादों की ऐसी तरबियत की, बल्कि पूरे अहले बैत के घराने की ऐसी तरबियत हुई। देखें वो वाक़या तो बड़ा मशहूर है, जब 3 दिन मुसलसल तसलसल के साथ इत्तिसाल के साथ रोज़े रखे गए पूरे घर वालों ने। मौला अली पाक भी हैं, सैयदना इमाम हसन भी हैं, सैयदना इमाम हुसैन भी हैं, हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हैं। ऐसी उनकी तरबियत हुई थी कि 10 दिन अगर जो पानी का मसला हुआ या खाने का कोई मसला हुआ तो उनमें उनको कोई मसला दरपेश नहीं हुआ, कोई मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग पहले ही हो चुकी थी। 3 दिन के रोज़े मसली रोज़े तो वो कसरत से रखा करते थे, ऐसी ट्रेनिंग हुई थी। और जिहाद की तरबियत मेरे आका अलैहिस्सलाम खुद दिया करते थे। एक दफ़ा सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा, पर्दे घर के पर्दा लगा हुआ था, पर्दे से देखा कि आका अलैहिस्सलाम दोनों शहजादों को फरमा रहे हैं कि मेरे सामने कुश्ती लड़ो। अब सैयदना इमाम हुसैन और सैयदना इमाम हसन बचपन का दौर है, तो वो आपस में कुश्ती लड़ पड़े। अब होता ये है कि जब कोई 2 भाई आपस में कुश्ती लड़ रहे हों या गेम खेल रहे हों तो बाप छोटे को समझाता है, छोटे के साथ होता है कि बड़ा तो बड़ा है, उसके पास ताकत भी है, उसके पास गुर भी है। लेकिन यहाँ अजीब मामला था, आका अलैहिस्सलाम सैयदना इमाम हुसैन को बता रहे थे, हुसैन हसन को टांगों से पकड़ो, हुसैन हसन को पीछे से पकड़ो। तो सैयदा फ़ातिमा फरमाती हैं, अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह चाहिए तो आपको ये था कि आप हसन तो बड़ा है, नहीं हसन को फरमा दो, सॉरी हसन को बता रहे थे कि हुसैन को इस तरह पकड़ो, हुसैन को इस तरह पकड़ो। तो आपने अर्ज़ की हज़रत सैयदा फ़ातिमा ने, या रसूलल्लाह हसन तो वैसे पहले बड़ा है, आप हुसैन को बताएं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फ़ातिमा खामोश हो जा, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही,
मैं अगर हसन को बता रहा हूँ तो जिब्रील हुसैन को बता रहा है, सुभान अल्लाह। जिब्रील हुसैन को बता रहा है। तो इस तरह का मामला था। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल होते थे, वो बग़ैर इजाज़त अंदर नहीं आते थे। ऐसा अहले बैत का पाकीज़ा घराना, ऐसी शान अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अता की और ऐसी तरबियत मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, देखें मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई थी अल्लाह तबारक व तआला से, या बारी ताला, कैसी तरबियत फरमाई, या बारी ताला मेरी अहले बैत को ऐसी रोज़ी दे कि एक वक्त का खाना हो, एक वक्त का फाका हो। ये तरबियत थी उनकी कि दुनिया से मोहब्बत तो थी नहीं और ये ट्रेनिंग भी करनी थी। ये पता था कि आखिर में एक मामलात ऐसे भी आने हैं जब खाना पीना इसकी आजमाइश शुरू हो जाएगी। तो दुआ फरमाई और अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। कई दिन अहले बैत अतहार के घर चूल्हा नहीं जलता था, खाना नहीं पकता था। अब मुख्तसर वक्त है, इसमें थोड़ा सा पस मंज़र मैं आपको पेश करूँगा क्या वजूहात बनी इसकी वजह से सैयदना इमाम हुसैन पाक को कूफे जाना पड़ा और अपनी तमाम अहले बैत को लेकर निकलना पड़ा। वलीद बिन उतबा ये मदीने का गवर्नर था, ये मदीने का गवर्नर था। जब यजीद तख्त नशीन हुआ तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको नसीहत की थी, विसाल से पहले उसको नसीहत की थी, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो 3 अफराद हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत इमाम हुसैन। अगर वो तुम्हारी बैयत कर लें फिर तो अमीर बन जाना, वरना घर बैठ जाना। लेकिन यजीद जो फासिक व फाजर था, जिसको हुकूमत का शौक़ था, जिसने अपने साथ बड़े बदमाश और लोफर लोग इकट्ठे कर लिए थे, उसने ये सोचा कि अगर मैं इनकी बैयत लेता हूँ तो अव्वल तो ये मुझे बैयत करेंगे नहीं, अगर मैं इनको छोड़ देता हूँ तो हो सकता है बाद में ये लोग इनकी बैयत कर लें और मेरी हुकूमत कमज़ोर हो जाए। तो उसने वलीद बिन उतबा जो मदीने का गवर्नर था उसको ख़त लिखा कि इन 3 हस्तियों से मुझे बैयत ले दो। वलीद बिन उतबा ने आधी रात का वक्त था, सैयदना इमाम हुसैन 5 वक्त की नमाज की इमामत कराया करते थे। मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हजूर के चचा के बेटे हैं और इस्लाम के पहले मुफस्सिर हैं, कुरान के पहले मुफस्सिर हैं, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, ये हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम जो अशरा मुबशरा सहाबी हैं, उनके बेटे हैं। ये तीनों बरगुज़ीदा हस्तियाँ मौजूद हैं। इतने में गवर्नर का जो पैगाम आता है, कासिद आता है कि गवर्नर आपको बुला रहे हैं सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के पास और बाकी सहाबा किराम के पास। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैरानी का इजहार करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी कहते हैं कि ये क्या मामला है, आधी रात को बुलाया जा रहा है। तो सैयदना इमाम हुसैन की फरासत देखें, आप फरमाते हैं कि मैं समझ गया हूँ, हज़रत अमीर मुआविया का विसाल हो गया और यजीद हमसे बैत लेना चाहता है। तो आपने मशवरा किया दोस्तों से, तो उन्होंने कहा कि चल के देखते हैं, लेकिन आप अकेले ना जाएं, ये हो सकता है कोई आपको नुकसान पहुंचाएं। हम आपके साथ कुछ सिपाही भेज रहे हैं नेज़े और तलवारें देकर। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो, आपने एक दफ़ा ज़ोर से आवाज़ लगानी है, ज़ोर से कोई बात कहनी है, ये अंदर आ जाएंगे। आपने फरमाया मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, मुझे जाने दें। जब आप वहाँ पर पहुँचे, वलीद बिन उतबा ये भी अहले बैत का मोहब्बती था, अहले बैत से मोहब्बत और एहतराम रखता था। आपने फरमाया क्या मामला है? तो उसने ये कहा कि हज़रत अमीर मुआविया का विसाल हो गया, तो यजीद आपसे बैत लेना चाहता है। तो हज़रत इमाम हुसैन पाक ने फरमाया कि मैं अकेले में और रात के अंधेरे में बैत नहीं दूँ, सारे सबको इकट्ठा करो। जिस तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत ली, सैयदना उमर फारूक ने बैत ली, सैयदना उस्मान गनी ने बैत ली और मौला अली ने बैत ली, मैं उसी तरह बैत दूँगा। और जिस तरह सब लोग होंगे, अगर सब लोग बैत देंगे तो फिर मैं बैत दूँगा। तो वलीद बिन उतबा ने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी है, मैं तो मुलाजिम हूँ, आप शहज़ादे हैं, अहले बैत अतहार के बड़े हैं, तो ठीक है मैं पैगाम पहुँचा देता हूँ। तो वहाँ से जब बाहर निकले तो मुशावरत की दोस्तों से कि अब क्या करना चाहिए। वो तो जंग के लिए तैयार है, क्योंकि वहाँ पर अब्दुल मलिक बिन मरवान बैठा था। उसने वलीद बिन उतबा से को मशवरा दिया कि आप अगर इमाम हुसैन को अब जाने देंगे तो बाद में हुसैन आपके हाथ नहीं आएंगे। ये मशवरा दे रहा था अब्दुल मलिक बिन मरवान, तो उसके कान में कह रहा था, उनके कान में, वलीद बिन उतबा के कान में कह रहा था। ये बात जब कही तो इमाम हुसैन ने सुन ली। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ इब्ने बरजाना,
शर्म कर, शरारत ना कर, कानाफूसी ना कर, जो बात है सामने आके कर। और मैं हुसैन किसी से नहीं डरता, मैं बैत करूँगा सबके सामने करूँगा। तो ये बात कहकर आप बाहर आ गए। पता चल गया कि जंग का माहौल भी बन सकता है। दोस्तों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि मुख्तलिफ जो ममालिक से वफूद जो आते हैं उनसे बुलाएं, उनसे मुशावरत करें। तो आपने फरमाया अगर मैं मुशावरत शुरू करूँगा, जब वफूद बुलाऊँगा तो हो सकता है यजीद जंग पे आ जाए और मदीने का जो शहर है वो लहूलुहान हो जाए, मुसलमानों को कत्लेआम शुरू हो जाए, ऐसा कोई काम ना हो जाए। क्योंकि मैंने सुना है अपने नाना जान से, उनने फरमाया कि एक मेंढा या एक बकरा ऐसा होगा जिसकी वजह से मदीने की गलियां लहूलुहान हो जाएंगी। दरअसल ये पेशन गोई उस यजीद के बारे में थी, मेरे आका अलैहि सल्लम ने फरमाई। तो आपने फरमाया वो मेंढा नहीं बनना चाहता, मैं मुशावरत करूँ और फिर ऊपर से वो जंग मुसल्लत कर दें और मदीने में ही जंग हो और मेरी वजह से ये नाना जान का जो प्यारा शहर मदीना है ये लहूलुहान ना हो। तो साहबा ने पूछा कि अब आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा, आपने फरमाया कि मैं मदीना छोड़ दूँ। आप अपने अहल वयाल को लेकर मक्के चल पड़े। हज के अय्याम थे, हज में कुछ दिन बाकी थे। कूफे वालों के ख़त आना शुरू हो गए। कूफे वालों ने इतने ख़त भेजे और ख़त में तहरीरें क्या थीं? ये थीं कि हम पर यजीद मुसल्लत हो गया है, हम पर यजीद मुसल्लत कर दिया गया है, कब्ज़ा कर लिया है उसने, हम उसकी बैत नहीं करना चाहते, आप आएँ हमें यजीद के तसल्लुत से बचाएं। फिर आगे ये भी तहरीर था, अगर आप नहीं आएंगे कल क़यामत के दिन हम अल्लाह की बारगाह में आपकी शिकायत करेंगे माज़अल्लाह कि भाई हमने बुलाते रहे, हुसैन नहीं आए। अब देखें इस मोड़ पर जब हक और बातिल ज़ाहिर हो और उसकी जगह में बातिल का जुल्म भी सामने हो, अब हक बातिल को मिटाने के लिए ना निकले तो अल्लाह तबारक व तआला ये नाफरमानी में आता है। दूसरा, हुज्जत भी पैदा हो चुकी थी, कूफे वालों ने ख़त भी लिख चुके थे और ये भी कह रहे थे कि अगर आप ना आए तो हम अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे। तो सैयदना इमाम हुसैन अपने अहल वयाल को लेकर वहाँ से चल पड़े। अब वहाँ से जब निकले सफ़र करते करते, लेकिन उससे पहले उन्होंने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। फिर भी साहबा कराम ने बारहा रोका तो आपने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, आप इस खत पर नहीं इतबार कर रहे हैं, मैं अपने जो चचाजाद है हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेज के देखता हूँ। फिर आपने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा कि जाकर हालात पता करें, कूफे के हालात क्या हैं, हमारे हक़ में हैं तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो आपने ये मशवरा कबूल किया, आपने भेजा। वो बड़ा लंबा किस्सा है, जब आप हज़रत मुस्लिम बिन अकील और उनके जो बेटे थे उनके साथ बड़े दुख भरी दास्तान है, वो भी एक लंबी दास्तान है। खैर जब मुस्लिम बिन अकील वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ का जो गवर्नर था उसके पास, गवर्नर जो था वहाँ का वो अहले बैत का एहतराम करता था, वो अहले बैत का मुहब्बत करने वाला भी था, एहतराम करने वाला भी था। उन्होंने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को जगह भी थी। जब लोगों को पता चला, कूफे वालों को, कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील हज़रत इमाम हुसैन के नुमाइंदे बनकर आए हैं, तो वो दौड़ते चले आए और एक दिन में 17,000 लोगों ने बैत कर दी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत दी कि हम हज़रत इमाम हुसैन के साथ हैं, उनको बुलाएं, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, यजीद के बंधन से आज़ाद होना चाहते हैं। हालात बड़े साजगार थे, अब सब खत भी मिल गए थे और सबूत भी मिल रहे थे। फिर भी हज़रत मुस्लिम बिन अकील 1-2 दिन मज़ीद ठहरे, मज़ीद 1-2 दिन गुजरे तो 40,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैत कर ली। 40,000 के लोग, ये कूफे वाले थे। फिर आपने हज़रत मुस्लिम अकील ने उसी वक्त ख़त लिखा सैयदना इमाम हुसैन पाक को कि आप आ जाएं, हालात हमारे हक़ में हैं, साजगार हैं। अब इधर से ख़त निकला है, इधर से जो साजिशी टोला था यजीद का वो निकले हैं यजीद की तरफ कि आपने एक ऐसा गवर्नर बिठाया हुआ है कूफे का, वो तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील एक दिन ऐसा आएगा वो गवर्नर हाउस पर कब्ज़ा कर लेंगे और फिर आपकी हुकूमत जाती रहेगी। तो यजीद ने वहाँ से अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद को भेजा, वो किसी और जगह का गवर्नर था, उसे वो लालची शख्स था, उसे ये कहकर भेजा कि जाओ तुम्हें कूफे की भी गवर्नरी मिलेगी, जाओ और मेरे हक़ में ये फ़ैसला करके और मुस्लिम बिन अकील को गिरफ़्तार करो और मुस्लिम बिन अकील को गिरफ़्तार करो और जो उनके साथ जो भी हैं उनको कत्ल कर दो, जो इनके साथ हैं कत्ल के आर्डर जारी कर दिए।
अब कूफे वालों को पता चल गया, आपको पता था वो दिल तो उनके साथ थे लेकिन तलवार, जब मेरे आका हज़रत सैयदना इमाम हुसैन पाक बाहर निकले ना उधर से, तो एक शायर मिला, फरदक शायर, वो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में शायरी किया करता था, यानी कि उनके हाथ में शायरी करता था, शेर लिखता था। उन्होंने कहा, जो शायर वो कहता है कि या सैयदना इमाम हुसैन से अर्ज़ करता है, हुजूर आप उधर ना जाएं, कूफे में ना जाएं, मैंने हज़रत मुस्लिम बिन अकील की लाश को लटकते हुए देखा। यानी उसने अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को, एक बड़ा मीनार था, बड़ी बुलंदी पर था, वहाँ से माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह माफ़ करे, वहाँ से गिराया नीचे और आपकी शहादत वाक़ई हुई। फिर आपकी लाश को चौक पर लटका दिया। उससे पहले जो 40,000 कूफे वाले थे, हज़रत मुस्लिम बिन अकील नमाज़ पढ़ा रहे हैं, पीछे 11 सफ़े हैं, 11 सफ़े, जब सलाम फेरा तो पीछे एक बंदा भी नहीं। ये कूफे वालों की बेवफाई थी। तो फिर आप गिरफ़्तार हुए, फिर आपको ये शहादत का मकाम मिला। तो आप, लेकिन ख़त पहले निकल चुका था, सैयदना इमाम हुसैन रवाना हो चुके थे, रास्ते में ये शायर भी मिल गया, उसने ये गवाही दे दी। तो सैयदना इमाम हुसैन ने जो बात की वो सुनने वाली है। तो आपने फरमाया, ए फरदक, ये बता, मेरा भाई लटका हुआ था, झुका हुआ तो नहीं था? लटका हुआ था ना, झुका हुआ तो नहीं था। हुसैन भी लटक जाएगा, झुकेगा नहीं। सुभान अल्लाह। फिर आप वहाँ से निकले, फिर हुर बिन जज़ीद मिला, फिर करबला में पहुँचे, वहाँ का एक अलहदा मार्का है, एक अलहदा एक दास्तान है, वो भी इंशाअल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि भाई आपको रास्ते में इतनी दफ़ा रोका गया, और बिन अजीज़ ने भी कहा, जिस तरह मामला है, फरदक शायर ने भी आपको बताया कि कूफे वाले बेवफाई कर चुके हैं, लेकिन आप रुके क्यों नहीं? अब ये बात भी सुनते हैं, एक तो हुज्जत थी, निकलना था, कूफे वालों ने बुलाया है, और यजीद के ख़िलाफ़ भी उठना था। अब एक और हुज्जत भी थी। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ए मेरी बहन, कि मैं जब निकला तो मुझे रात में आका अलैहिस्सलाम नाना जान रहमत आलमीन की ज़ियारत हुई, और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुसैन रुकना नहीं। आज अगर ये रिवाज पड़ गया कि जुल्म के आगे निकलना नहीं है, तो फिर क़यामत तक जालिम के बराबर कोई नहीं आएगा, जालिम के ख़िलाफ़ कोई नहीं उठेगा। तो सारे यही कहेंगे, जब हुसैन नहीं उठे यजीद के मुकाबले में, तो अब हम क्यों उठें? अगर तुम रुक गए तो ये एक रिवाज पड़ जाएगा, तो रुकना नहीं है। जब बात ही ख़त्म होगी, जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, हुसैन तुमने रुकना नहीं है, और जुल्म के ख़िलाफ़ वही उठता है जो हक़ पर होता है, जो हौसले वाला होता है, जिसका ईमान मजबूत होता है। और अहले बैत अतहार का ईमान इतना मजबूत था, वो निकल सकते थे। तो जब करबला में पहुँचे, फिर एक मार्का हुआ, फिर उसके बाद एक अलग एक दास्तान है, फिर आपको शहादत का मकाम मिला। जब आप शहीद हो रहे तो सदा आसमान से बुलंद हो रही थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ए नफ्स मुतमइन्ना, आजा मैं तुझसे राज़ी हूँ, तू मुझसे राज़ी है, आजा मेरी जन्नत में दाखिल हो। सुभान अल्लाह। मेरे आका इमाम हुसैन पाक सर मुबारक नेज़े पर था, लेकिन आप कुरान पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आपने आखिरी वक्त में भी नमाज को नहीं छोड़ा। वो नमाज, वो हक इस्लाम की खातिर कुर्बानी दे गए, नमाज को बचा गए, कुरान को बचा गए। आज अगर वो कुर्बानी ना देते तो आज यजीद ने जिस इस्लाम की जो तस्वीर पैदा कर दी कि हराम को हलाल, हराम रिश्तों को, महरम रिश्तों को हलाल कर रहा था, चोरी, जिना, जुआ, खाना, वो सब कुछ वो उसको हलाल करार देता, इस्लाम की उसने तस्वीर ही बदल डाली थी, तो वो आज हमें नज़र आती। लेकिन कुर्बान जाइए सैयदना इमाम हुसैन पाक के अपनी कुर्बानी और अपने अहले बैत की कुर्बानी देकर आज इस्लाम को बचा लिया, जिसकी वजह से आज 1400 साल बाद भी इस्लाम हमारे सही शक्ल में हमारे पास है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिर में मैं एक आइम्मा अहले बैत की सनद के साथ जो रिवायत है, एक हदीस रिवायत है, उसको पेश करने के साथ हासिल करूँगा। फिर दोस्तों दुरूद पाक पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इमाम अली रज़ा, ये हमारे इमाम हैं, आइम्मा अहले बैत के, इनके नाम पता होने चाहिए। इमाम अली रज़ा ये एक जगह पर पहुँचे, आपने इमाम शरीफ पहना हुआ है और सर अक़दस को भी चादर से ढका हुआ है। जब आप उस जगह पर पहुँचे तो पता चला कि इमाम हुसैन पाक ज़ैनुल आबिदीन की
औलाद में से आइम्मा अहले बैत हमारे इलाके में तशरीफ़ लाए हैं, तो कई लोग इकट्ठे हो गए आपकी ज़ियारत के लिए। ये हत्ता कि जो मुहद्दिसीन कराम थे, आइम्मा कराम थे, उलमा कराम थे, सारे कलम दवात लेकर आ गए कि आज इमाम साहब से कुछ सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे। तो इमाम साहब जब तशरीफ़ लाए, घोड़े पर तशरीफ़ रवा थे, चेहरा मुबारक ढका हुआ था, तो सब ने दरख्वास्त की हजूर चेहरा दिखाएं, अपना चेहरा अनवर दिखाएं, चेहरा मुबारक दिखाएं। तो आपने जब अपना चेहरा मुबारक से कपड़ा उतारा तो कई लोग आपकी नूरानियत देखकर गश खाकर बेहोश हो गए। और फरमाते हैं कि 20,000 के करीब तो सिर्फ मुहद्दिसीन कराम थे, कलम दवात गिने के 20,000 के करीब उलमाए कराम थे, वो बेहोश हो गए। जब होश में आए फिर अर्ज़ की हुजूर मेहरबानी फरमाए, हजूर की कोई हदीस सुनाए हमें। कलम दवात लिख के बैठे हुए हैं, चेहरे को तक रहे हैं। तो इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रहमतुल्लाह ताला ने हदीस मुबारक, हदीस कुदसी सुनाई, सनद के साथ अर्ज़ करूँगा। इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैंने अपने बाप इमाम मूसा काज़िम से सुना, उन्होंने अपने वालिद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से सुना, और उन्होंने अपने वालिद हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, फिर उन्होंने अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, फिर उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने वालिद सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना। सैयदना इमाम हुसैन ने अपने वालिद सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम से सुना। उन्होंने मौला अली पाक ने हजूर ताजदार कायनात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते सुना। फिर हजूर ने फरमाया कि मैंने जिब्रील से सुना। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह को ये फरमाते सुना। अब क्या फरमाते सुना? फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मिलकर पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मेरा कला है। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इन तमाम रावियों के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कला है, जो भी इस कले में दाखिल हो गया मेरे अजाब से महफूज हो गया। सुभान अल्लाह। जो भी इस कले में दाखिल हो गया मेरे अजाब से महफूज हो गया। सुभान अल्लाह। ये हदीस इतनी मजबूत है कि इसमें सारे आइम्मा अहले बैत हैं, इसके ज़ईफ़ होने को कोई शक हो ही नहीं सकता। ये इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों ने इनको रिवायत किया है। और कलमा तय्यबा इसका विर्द जारी रखें, इसको कलमा तय्यबा को पढ़ते रहें साथ साथ। और हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हम दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं कलमा पढ़ कर, और अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक उसके कले में दाखिल हो गए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अजाब से महफूज रखेगा, आमीन इंशाअल्लाह। और इसकी जो सनद है इसको याद करने की कोशिश करनी, ये रिकॉर्ड भी हो गई है। इसकी सनद के बारे में इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, अगर ये सनद किसी ऐसे शख्स पर जो मजनू हो, पागल हो, दीवाना हो, जैसे किसी बीमारी की वजह से भी हो जाते हैं, पर ये सनद पढ़ ली जाए तो वो मजनू ठीक हो सकता है, अल्लाह की अता से वो ठीक हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करते रहें, अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत अतहार की मोहब्बत नसीब फरमाए। क्योंकि अहले बैत अतहार, एक दफ़ा मेरे आका अलैहि सलाम ने सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन को ऐसे गोद में बिठाया हुआ है, फिर फरमाया कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, जो भी इनसे, इनकी वालदा से, इनके बाप अली से मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ होगा। फिर फरमाया मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक तुम इनको पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे। फरमाया एक तो कुरान है, दूसरा मेरी अहले बैत। फरमाया अपनी औलाद को सिखाओ, कुरान की मोहब्बत सिखाओ, मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। तो मेरे दोस्तों, अहले बैत की मोहब्बत ईमान को ताज़ा करती है, ईमान को ताकत देती है। फिर उनका जो फ़लसफ़ा है, कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है, उसको समझने की कोशिश करें। आप ये चाहते थे कि नाना जान की उम्मत नमाज को कभी ना छोड़े, कुरान को कभी ना छोड़े, जब मुसीबत आए, परेशानी आए, उसमें सब्र और हौसला रखे, सब्र से काम ले। आज ये जजीदियों का नाम लेने वाला कोई नहीं है ना, ये मेरे आका सैयदना इमाम हुसैन के सब्र की वजह है कि वो ख़त्म हो गए, उनका नाम तक नहीं बचा, लेकिन मेरे आका सैयदना इमाम हुसैन का नाम अब भी ज़िंदा है।
اور قیامت تک زندہ رہے گا اور نام لینے والے جاری رہیں گے، قیامت تک جاری رہیں گے۔ کیوں؟ ان کا صبر تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور ان کا حوصلہ دیکھیں، ان کی استقامت دیکھیں۔ آج ہم تھوڑی سی تکلیف اور بخار ہو جائے نا، پورے شہر کو سناتے پھرتے ہیں بھائی مجھے بخار ہو گیا تو میرے سر میں درد ہے، مجھ سے یہ تکلیف ہو گئی، مجھ پر تو یہ پریشانی آ گئی، اتنا قرضہ آ گیا۔ ان کی پریشانی تو دیکھیں، ایسی پریشانی کسی پر نہیں، لیکن آپ نے صبر کیا۔ آخر میں بھی یہ کہتے رہے یا اللہ تو مجھ سے راضی ہے، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ پھر اللہ نے بھی بتا دیا یا ایتھا النفس مطمئنہ، اے میرے نفس مطمئنہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی، آ میری جنت میں داخل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ حضور رسول السلام کے اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ